गुड मॉर्निंग क्लास। इन प्रीवियस लेक्चर हम आपको पढ़ा चुके थे गॉस थ्योरम और उसके कुछ एप्लीकेशंस। टुडे आई विल टीच यू more application on the Gauss theorem, which is used in competition, not only the board examination, but most probably it will be asked in competitive examination. So first, some important application on Gauss theorem. To determine the electric field at a point due to hollow sphere. इस साल सीबीएसई इसको हटा दिया है, लेकिन ये गारंटी नहीं कि सीबीएसई हटा दिया तो अगले साल नहीं ऐड करेगा, कर सकता है। इसके अलावा कंपटीशन में भी पूछ सकता है, इसलिए बता देते हैं इसको। कंसीडर देयर बी हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर, सिग्मा विद द चार्ज डेंसिटी per unit surface area. There is no charge inside the hollow sphere, so that we have to consider the charge density as sigma, not rho. Consider there be hollow sphere. There be a hollow sphere of radius r, sigma be the charge density per unit surface area. P be the point at a distance of x from the center of the sphere, taking x as a radius. We draw Gaussian surface. Consider there be hollow sphere of radius r, sigma be the charge density per unit surface area. P be the point, P be the general point at a distance of x from the center of the sphere, taking x as a radius. We draw Gaussian surface. Case 1, if x is less than r, P lies inside the sphere. Having area vector ds from Gauss theorem E dot ds is equal to q by epsilon naught. E इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4 pi x square, because it is the area Gaussian surface have very radius, spherical surface have radius x, so E 4 pi x square, but there is no charge inside the Gaussian surface, so q is 0 or equal to 0, therefore E is also 0. Case 2, if x is equal to r, E dot ds is equal to q by epsilon naught. E ds is equal to 4 pi r square. We know that Gaussian surface pass through continuous charge, doesn't pass through discrete part, but may charge pass through continuous charge. Here sigma is the continuous charge present on the surface of the sphere. So total charge क्या होगा? Unit area has sigma, then 4 pi r square has sigma into 4 pi r square by epsilon naught. Since unit area has sigma charge density, therefore 4 pi r square has sigma into 4 pi r square, that is q is equal to sigma into 4 pi r square.
तो 4 पाई r² कट गया, E इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। केस 3 इसको नोट कर लिया होगा, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x is greater than case 3, x is greater than r, having area vector ds. So from Gauss theorem, E dot ds is equal to q by epsilon naught। E रहेगा, ds कितना होगा इसका सरफेस एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर, बिकॉज x डिस्टेंस पर एरिया वेक्टर है ds। चार्ज ऑलरेडी हम निकाल दिए, सरफेस पर कितना चार्ज है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल, E इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। So at the surface it will be sigma by epsilon naught. Inside the hollow sphere there is no electric field due to the absence of charge, and outside the surface electric field is inversely proportional to x square। तो एक ग्राफ अगर हम इसका ड्रॉ करते हैं, अगर हम ग्राफ इसके लिए ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच में, तो रेडियस तक क्या होगा, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, E बराबर 0। एट द सरफेस इट विल बी मैक्सिमम, देयरफॉर इट विल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। एट द सरफेस इट विल बी मैक्सिमम, E विल बी मैक्सिमम, सबसे ज्यादा सरफेस पर होगा, इक्वल टू होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, पहला ही तो होगा डिस्कशन में। दूसरा है एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि अगर एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसमें एक सेक्शन कट कर लेते हैं, छोटा सा सेक्शन कट कर लेते हैं, तो बाकी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और बाहर की ओर होगा। 1.29 है क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन हटा देने के बाद भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। सेक्शन इज टेकन आउट फ्रॉम द हॉलो स्फीयर, प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, सेक्शन इज टेकन आउट फ्रॉम द हॉलो स्फीयर, then we have to prove the electric field will be sigma by 2 epsilon naught, or sigma will be 2 epsilon naught at that point directed outward। तो इसको प्रूफ करना है कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इसके कारण इस पॉइंट अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं कि E1 है और बाहर में भी E1 है। अब इस सेक्शन को जो कट किए थे उसको अगर हम भर दें, तो इस जो सेक्शन कटा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा और इसके बाहर की ओर होगा E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो स्फीयर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the hollow sphere is E1 minus E2. Already it is given from the diagram. E1 is directed in this way, E2 is directed in this way, so E1 minus E2. But हम already proof कर चुके हैं थोड़ा देर पहले कि electric field inside the hollow sphere is 0. So this is 0. So E1 is equal to E2. Now just outside the
outside the hollow sphere, the electric field is equal to E1 plus E2, and at the surface, just at the surface, this is equal to sigma by epsilon naught. Sigma by epsilon naught. But we know that E1 is equal to E2 from equation 1. From equation 1, E1 plus E2, 2E1 is equal to sigma by epsilon naught. Therefore, E1 is equal to sigma by 2 epsilon naught. Directed outward, जो बाहर की ओर है, E1 का डायरेक्शन बाहर की ओर है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन डायरेक्टेड आउटवर्ड. इस तरह से प्रूफ हो सकता है. हॉलो स्फीयर की जगह अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया जाए तो क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए. अगर इसके बाहर कंडक्टिंग स्फीयर ले ले तो क्या होगा, कॉपर का स्फीयर ले ले, आयरन का ले ले, तब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. इफ solid conducting sphere like copper ball, iron ball is taken, अगर उसके बदले में solid conducting sphere like copper ball, iron ball is taken अगर लिया जाए तो क्या होगा. इसके केस में सॉलिड स्फीयर होने के बाद वी नो दैट इनसाइड द हॉलो स्फीयर, इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो चार्ज. कंडक्टर देयर इज नो चार्ज, दैट इज चार्ज always reside on the outer surface of the conductor. There is no charge, that is charge always reside on the outer surface of the conductor. So it will behave as hollow sphere. ये hollow sphere की तरह behave करता है. ओके, तो जैसा hollow sphere का प्रूफ करेंगे वैसा इसका भी प्रूफ करेंगे. लेकिन अगर इंसुलेटिंग स्फीयर है तो to determine the electric field at a point due to application 4 to 5 was actually 5 to determine the electric field at a point due to solid insulating sphere like plastic ball और रबर बॉल etc. तो अगर क्वेश्चन पूछ देता आपको एग्जाम में कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, देन यू हैव टू प्रूव बोथ हॉलो स्फीयर एज वेल एज सॉलिड स्फीयर, बिकॉज यू हैव टू टेक टू कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन केस 1 में लिखना कि इफ द सॉलिड स्फीयर इज मेड ऑफ कॉपर और आयरन, दैट मीन्स कंडक्टिंग स्फीयर. इफ the ball is made of plastic or rubber, then you will take solid sphere as a insulating solid sphere. तो दो केसेस में चलना है. हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा कंडक्टिंग स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर अभी प्रूव कर रहे हैं. तो मानते हैं कि प्लास्टिक या रबर बॉल का सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है. कंसीडर देयर बी प्लास्टिक सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर, कंसीडर देयर बी solid insulating sphere of radius r. Rho be the, since charge reside inside as well as outside the surface, so rho as a charge density we have to consider. Rho be the charge density
per unit volume. Rho be the charge density per unit volume. P be the point at a distance of x from the center of a sphere, taking x as a radius, we draw Gaussian surface. We draw Gaussian surface having area vector ds, जिसका एरिया वेक्टर ds है. To determine the electric field at a point due to solid insulating sphere or plastic wall, consider there be solid insulating sphere like plastic ball or rubber ball having radius r. Rho be the charge density because charge resides inside and outside the solid insulating sphere. P be any point inside the P be the point, general point from the center of the sphere, from the center at a distance of x from the center, whether it lie inside the sphere, on the surface or outside the surface. This is the general point जिसका एरिया वेक्टर ds है. तो केस 1 if x is less than r होगा तब क्या होगा? केस 1 if x is less than r, तो क्या होगा? ये सॉलिड स्फीयर है, P कोई पॉइंट है, इसको x डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए जिसका एरिया वेक्टर ds है. तो फ्रॉम गॉस थ्योरम E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. अब इसका सरफेस E तो रखेंगे, सरफेस एरिया इसका कितना होगा? जितना x डिस्टेंस पर है 4 पाई एक्स स्क्वायर. इसके अंदर चार्ज कितना है? तो रो इंटू 4 बाई 3 पाई एक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. यूनिट वॉल्यूम हैज रो एंड 4 बाई 3 पाई एक्स क्यू का कितना हो जाएगा? रो इंटू 4 बाई 3 पाई एक्स क्यू. ये क्यू का वैल्यू हो जाएगा. सिर्फ रो से मल्टीप्लाई कर देना. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल. तो E इज इक्वल टू हो जाएगा रो एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. दैट इज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. It means at the center E is 0 since x is 0. सेंटर पर x 0 होता है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा. केस 2 क्या होगा? अगर सरफेस पर ले आए तब केस 2 इफ x इज इक्वल टू r, इस पॉइंट पर ले आए एरिया, सरफेस एरिया जिसका एरिया वेक्टर ds है. तो E डॉट ds इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट. E इसका ds है x r डिस्टेंस पर, तो इसका हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर. चार्ज कितना होगा? यूनिट वॉल्यूम में चार्ज रो है, तो 4 पाई r क्यू में कितना हो जाएगा? तो रो इंटू 4 बाई 3 पाई r क्यू में होगा रो इंटू 4 बाई 3 पाई r क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. 4 पाई स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल होगा. तो E बराबर क्या होगा? रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. ये कांस्टेंट होगा और मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. केस 3 हो सकता है कि इफ x इज लेस देन r, x is greater than r. Case 3 if x is greater than r, तो E dot ds is equal to होगा Q by epsilon naught E into 4 pi x स्क्वायर. बाहर की ओर अगर है, मानते एक डायग्राम बना लेते हैं, ये रेडियस है और पॉइंट बाहर है x डिस्टेंस पर, जिसका एरिया वेक्टर है ds. या इधर ले लेते हैं ds, जिसका एरिया वेक्टर है ds. x डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस x है. 4 पाई एक्स स्क्वायर. रो का क्या होगा? रो इंटू 4 बाई 3 पाई r क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट. क्योंकि चार्ज तो इसी पर है, सिर्फ इतना ही में चार्ज है, इस सेक्शन में चार्ज है, चार्ज इसके अंदर नहीं है. तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर E इज इक्वल टू होगा रो r क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर. E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. तो
अगर ये रिजल्ट हुआ तो अगर तीनों रिजल्ट को बता के ग्राफ ड्रॉ किया जाए, ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, ई और एक्स के बीच ग्राफ अगर खींचा जाए, ये डिस्टेंस है एक्स, आर है, और उसके बाद एक्स बढ़ रहा है, तो सेंटर पर 0, सरफेस पर मैक्सिमम कितना, रो आर स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद धीरे धीरे घटेगा, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये क्योंकि इनवर्सली है इसलिए इसका ग्राफ थोड़ा सा झुकता हुआ रहेगा, थोड़ा और झुकता हुआ रहेगा, इस तरह से रहेगा, दैट्स द ग्राफ। अगर Q पॉजिटिव है निगेटिव है तो नीचे ही इसका ग्राफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही ग्राफ है। ये तीसरा 5वां एप्लीकेशन हुआ। अगर इसी में एक एप्लीकेशन बढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिव में पूछ सकता है कि अगर इसके अंदर कैविटी हो, स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, वो सेंटर है, एक कैविटी है जिसका भी सेंटर ओ डैश है, ए डिस्टेंस पर, पी कोई पॉइंट है जो इस सेंटर से r1 डिस्टेंस पर है, इस सेंटर से r2 डिस्टेंस पर है, इनसाइड द कैविटी, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, एप्लीकेशन नंबर 6, to determine the electric field inside the cavity. तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस कैविटी को भर देंगे, कैविटी भर गया और ओ सेंटर था जिसका रेडियस आर है, पॉइंट है पी, एक्स r1 डिस्टेंस पर, तो इसके लेकर के गॉसियन सर्कल बना लेंगे, इसका एरिया वेक्टर ds होगा, और उसके भरने के बाद जो कैविटी बचा उसका एक अलग से बना देंगे, इसका सेंटर o डैश है जो p पॉइंट से r2 डिस्टेंस पर है, तो इसका एक अलग बना लेंगे, एरिया वेक्टर ds इसका भी हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अभी बताया अंदर में कितना होता है, रो r1 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, E1 इज इक्वल टू, इसके कारण E1 हुआ, इसके कारण E2, एंड E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो R2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो हम बताए रिजल्ट E नेट बराबर क्या होगा, E नेट इज इक्वल टू होगा E1 माइनस E2, रो R1 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो R2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू R1 माइनस R2, E इज इक्वल टू, in triangle O dash P, in triangle from triangles law, in triangle O dash P क्या होगा, O dash प्लस O dash P, O dash प्लस O dash P इज इक्वल टू क्या होगा, OP, O dash कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे A, प्लस O dash P का वैल्यू R2 है तो इसको लिखेंगे R2, दिस इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है R1, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R1 माइनस R2, नहीं R1 माइनस R2 के बदले में क्या लिख सकते हैं, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू A। डिस्कशन अगर करें इसका मतलब क्या हो कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विल बी यूनिफॉर्म, इसको नोट कीजिए, इसके बारे में लिखाएंगे, इसको पहले सॉल्व फिलअप कर देंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जब जिसको फिलअप किए तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दोनों को माइनस करेंगे, जो कैविटी का मतलब उसमें से सेक्शन निकाला हुआ है इसलिए उसको माइनस कर दिया जाता है। किसी भी तरह का जाता है, इनफाइनाइट सीट है ऐसा ही देता है, इनफाइनाइट सीट, इसमें एक कैविटी देता है उसके कारण बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले इनफाइनाइट के लिए निकाल लेते, फिर उस डिस्क के कारण निकालते इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को माइनस करते तब आंसर हो जाता है। कहीं भी कैविटी का क्वेश्चन आएगा ऐसे ही सोचना है। इसका डिस्कशन क्या होगा कि the electric field inside the cavity, the electric field inside the cavity कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विल बी इनसाइड द कैविटी विल बी यूनिफॉर्म,
वो यूनिफॉर्म होगा। सेकेंड, it will parallel to the line joining their center इस तरह से हो सकता है। मानते हैं कि एक कैविटी है, स्फीयर है, इसके अंदर कैविटी है, तो ये है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का पैरेलल होगा, यहाँ पर होगा तो इसको ज्वाइन करेंगे, इसके पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर कैविटी ले लेंगे तो इसको ज्वाइन करेंगे तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जो सेंटर और उसके सेंटर को ज्वाइन करेगा उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ज्वाइनिंग देयर, इट विल पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। तीसरा, इफ द सेंटर इज ए इज जीरो, यानी कैविटी ओवरलैप द सेंटर cavity of center of cavity overlap the center of the sphere, that is A is equal to 0, the electric field inside the cavity will be 0. Electric field inside the cavity will be 0. इसको हम इसलिए लिखे, पहले इसको ना भी लिखते थे, लिख लिए इसलिए कि क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट जरूरी, क्योंकि इससे पहले जैसे हॉलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक लड़के ने हमसे पूछा कि सर हॉलो स्फीयर इज अ लार्ज कैविटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, देन व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इनसाइड द हॉलो स्फीयर इज 0। तो रीजन यही है कि द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ द कैविटी एंड सेंटर ऑफ द स्फीयर ओवरलैप ईच अदर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विल बी 0। क्योंकि ए 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा कि हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 है, कैविटी के अंदर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड है। एप्लीकेशन नंबर 7 टू डिटरमाइन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on the plate चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा ऑन द प्लेट, प्लेट के ऊपर। मानते हैं कि 3 प्लेट है, एक प्लेट एरिया हैविंग एरिया सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देयर 3 प्लेट्स आर गिवन, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3. These have charge q, this is have 3q, this have minus 8q. Find the charge on each surface. तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। फर्स्ट, इसको 3 रूल को फॉलो करना है। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल चार्ज आर एडेड, टोटल चार्ज आर एडेड, सभी चार्ज को ऐड करेंगे। हाफ ऑफ द टोटल चार्ज lie on the first face of the first plate, while other half on the second face of the last plate, तीसरा है, each plate will follow conservation theory of charge, Fourth, front faces will follow front face follow करेगा कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी, फ्रंट फेस इंडक्शन फॉलो करेगा। अब हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल चार्ज आ रहा है, तो Q है 3Q है माइनस 8Q है, तो कितना हो गया Q प्लस 3Q माइनस 8Q, दिस इज इक्वल टू माइनस 4Q। अब माइनस 4Q में आधा चार्ज इस पर रहेगा, माइनस 2Q इस पर रहेगा और माइनस 2Q इस पर रहेगा,
क्योंकि लिखें कि फर्स्ट ऑफ टोटल चार्ज आएगा हाफ ऑफ द टोटल चार्ज lie on the first face of the first place and other half on the second face of the last plate. Okay, now each plate will follow the conservation theory of charge. This is minus 2q, this is q, so this plate have only q charge. This face have minus 2q, that means this face must contain minus plus 3q. टोटल ऐड करेंगे तो q के बराबर आएगा. फ्रंट फेसेस फॉलो इंडक्शन, तो 3q है तो यहाँ माइनस 3q हो जाएगा. आई माइनस 3q है, 3q चाहिए, इसका मतलब यहाँ 6q हो जाएगा. अब फ्रंट फेसेस माइनस इंडक्शन करेगा तो माइनस 6q हो गया, दोनों जोड़ करके माइनस 8q अपने आप आ गया. तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम कर लेंगे. एप्लीकेशन नंबर 8, इसको नोट कर लीजिए. एप्लीकेशन नंबर 8, अगर कोई डिस्क है या रिंग है और उसे क्यू चार्ज के डिस्टेंस r पर रखा हुआ है, x पर रखा हुआ है, डिस्टेंस r है, तो इसके कारण जो फ्लक्स इससे लिंक्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा होगा. इसका फ्लक्स सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा. अगर कॉस थीटा का वैल्यू, दिस इज द थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट होगा. एप्लीकेशन नंबर 9 अगर हम चले कि अगर एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, ए साइड है, a बाई 2 पर q चार्ज रखा हुआ है, तो फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद दैट प्लेट. इस प्लेट से कितना है, तो 2D है, 2D के आउटसाइड में चार्ज है, तो सोच सकते हैं कि हाँ फ्लक्स जुड़ सकता है. तो सबसे पहले इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ए साइड लेकर के. इस तरह से की तो इसका कितना हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसके अंदर है. और ये फ्लक्स कितना है, फ्लक्स फाई डैश बराबर, ये फ्लक्स कितना सरफेस के लिए है, 6 इंटू ई ए स्क्वायर, इसका एरिया हो जाइए. लेकिन हमको फ्लक्स चाहिए एक प्लेट के साथ, इसके लिए सिर्फ, तो कितना हो जाएगा, ये a बाई 2 डिस्टेंस पर है, तो हमको एक के साथ चाहिए q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. तो ई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट. हमको हमने एक सरफेस के प्लेट के लिए चाहिए, तो q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. उसी तरह से और भी फेसेस के लिए चल सकते हैं. मानते कोई स्क्वायर है, मानते कोई फेस है, इस पर चार्ज रखा हुआ है, तो इसको पूरा कवर करने के लिए एक और ऐसा डस्टर चाहिए, मतलब q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. इसके वर्टिसेस पर है रखा हुआ चार्ज है, तो ऐसा इसको 8 चार्ज चाहिए, मैंने q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इसका फ्लक्स होगा. किसी एज पर होगा तो ऐसा कवर करने के लिए 4 को चाहिए, सब सेम सिमेट्रिकल. तो इसका एक एज के लिए कितना हो जाएगा, q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट. कॉर्नर के फेस के लिए q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉर्नर के लिए q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, और एज के लिए हो जाएगा फ्लक्स, एज के लिए होगा फ्लक्स इज इक्वल टू q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट. फेस के लिए हो जाएगा फ्लक्स के लिए q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और कॉर्नर के लिए हो जाएगा फ्लक्स के लिए q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट. एक तरह से रट लीजिए, इसको याद आएगा, काम आएगा आपको. एक और इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड में बहुत आता है, एप्लीकेशन कुछ भी होगा, नंबर होगा, छोड़ दीजिए. इसमें क्या है कि एक स्क्वायर है जिसका साइड ए है, ए डिस्टेंस पर रखा हुआ साइड ए है. दो केसेस है, इफ E इज इक्वल टू 4i, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है 1, या E इज इक्वल टू 4x स्क्वायर आई. सेकंड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एक E इज इक्वल टू 4i और सेकंड है E इज इक्वल टू 4x स्क्वायर आई. तो इसका एरिया वेक्टर एक इधर की होगा, इसके लिए होगा, एक इसके लिए नीचे के लिए होगा, एक इसके लिए होगा, एक इसके लिए होगा,
एक इधर के लिए होगा और पीछे के लिए एक होगा। तो इसमें जैसे मानते ये सरफेस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक इधर के लिए होगा, एक नीचे के लिए होगा, एक इधर के लिए होगा, एक इधर के लिए होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। तो ये जो इस तरह से है तो ये परपेंडिकुलर है, इसके इधर की ओर भी है तो परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर भी है तो परपेंडिकुलर है, इसके नीचे की भी है तो परपेंडिकुलर है। लेकिन ये वाला एरिया वेक्टर और ये वाला एरिया वेक्टर एक दूसरे का पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो फ्लक्स अगर 1 के लिए चल रहा है तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं ds1, इसको ds2, ये ds3 है, ds4, ds5 और ds6। तो ds3, ds4, ds5, ds6 परपेंडिकुलर टू द ई है, ds4, ds3, ds5, ds6 आर परपेंडिकुलर टू ई। सो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा फ्लक्स, सो 5 0, बट 5 इज इक्वल टू ई डॉट ds1, 2 के लिए नहीं होगा ds1 और प्लस ई डॉट ds2 होगा। तो ई डॉट ds1 कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ई का वैल्यू कितना दिया 4i और ds1 इसका एरिया कितना होगा a स्क्वायर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ई डायरेक्शन एक दूसरे का एंटी पैरेलल है, तो इसका माइनस होगा 4 इंटू ए स्क्वायर, फ्लक्स 0 हो जाएगा। सो Q इज ऑल्सो 0, जिसमें चार्ज नहीं रखा है। तो कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी चार्ज नहीं रह सकता है। दूसरा केस है, इसको नोट कीजिए, दूसरे केस में बाकी सब तो सेम ही रहेगा, दूसरे केस में सिर्फ E की जगह पर 4x² दिया हुआ है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है ds1, तो E की जगह लिखेंगे 4 और a इंटू ए, यहाँ का डिस्टेंस 2a है, a इतना, यहाँ से a, यहाँ से a 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a², और इसका एरिया वेक्टर a², और इसमें क्या होगा माइनस होगा क्योंकि एंटी पैरेलल है। इसका कितना होगा 4, यहाँ से डिस्टेंस x है तो a² हो जाएगा इंटू a²। फ्लक्स इज इक्वल टू 16a टू द पावर 4 माइनस 4a टू द पावर 4, इसका होता है 12a टू द पावर 4। तो फ्लक्स इज इक्वल होता है Q/ε0 इज इक्वल टू 12a4। एक फ्लक्स का निकल गया कितना फ्लक्स होगा, और इससे चार्ज अगर पूछ दिया कि कितना चार्ज उसके अंदर है तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 12a टू द पावर 4 ε0। इस तरह से हम चार्ज भी निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितना चार्ज है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका बोर्ड में बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो और भी एक क्वेश्चन राइज होते हैं गॉस थ्योरम पर, अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस ईमेल पर भेजिए mohansarclasses@gmail.com पर, और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं पोटेंशियल पर, गॉस थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन राइज होगा उसको पूछिएगा। अब हम चलते हैं पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल? Second topic, it is a work done to bring a unit positive charge from infinity to a point against electrostatic force slowly. Slowly word होना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल का डेफिनेशन है, it is a work done to bring unit positive charge when it is brought from infinity to a point against electrostatic force slowly। मानते कोई पॉइंट चार्ज Q है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, टेस्ट चार्ज Q0 brought from infinity to a which is at a distance of r. We consider small displacement dx at a distance of x from point O. Q be the charge. फिर से बोलते हैं कंसिडर Q be the point charge at point A having electric field E. A test charge Q0 brought from infinity to A which is at a distance of a small r from O. We consider very small displacement
Cube is the point charge at point O having electric field E. A test charge Q0 brought from infinity to A, which is at a distance of R. We consider for a very small displacement dx at a distance of x from O. The direction of electric field is this way. So numerically it is equal to work done per unit test charge. Work done per unit test charge. तो देन dw इज इक्वल टू क्या होगा, f डॉट dx होता है, dx डिस्प्लेसमेंट किए तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या होगा, 1 f dx cos थीटा होगा. थीटा कितना है, एक दूसरे का अपोजिट है तो 180 है. तो f dx cos 180 क्या होता है, माइनस f dx होता है. f इज इक्वल टू क्या होता है, k q इंटू q0 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx. dw इज इक्वल टू q0 किधर ले आते हैं, तो dw बाई q0 is equal to kq by x square into dx. Work done per unit test charge is called potential. So dv is equal to kq by x square into dx. Taking integration both side. Integration both side. दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं. तो इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा हमको, dv इंटीग्रेशन इज इक्वल टू kq बाई एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन. ये इंफिनिटी से लेकर के r तक ला रहे हैं, 0 से लेकर v तक ला रहे हैं. v इज इक्वल हो जाएगा, kq कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इंफिनिटी टू r kq. इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बाई एक्स इंफिनिटी टू r kq माइनस kq 1 बाई r माइनस 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी 0, 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है. तो माइनस kq बाई r. माइनस ऑलरेडी माइनस था, पहले से माइनस था, एक माइनस 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 प्लस हो जाएगा. v इज इक्वल टू kq बाई r. इसका फॉर्मूला v इज इक्वल टू k का वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r. ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा. अब इसका डिस्कशन क्या होगा, डिस्कशन SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट और जूल पर कूलम. CGS यूनिट स्टैट वोल्ट और अर्ग पर स्टैट कूलम. 1 स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट. इट इज स्केलर क्वांटिटी. इट इज एडेड algebraically. For negative charge it is taken negative, while for positive charge it is taken positive. नेगेटिव के लिए नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव लेंगे. छठा, it depends on reference point. Depends on reference point. That is, अगर इंफिनिटी के बदले में, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है. अगर इंफिनिटी को हम रेफरेंस पॉइंट माने, इंफिनिटी चला रहे हैं, अगर किसी दूसरे जगह के पर पोटेंशियल को 0 मान के उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाएंगे तो पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा, यानी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगा. 7th, algebraically for negative it is taken negative, while positive it is taken positive. इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं. एप्लीकेशन नंबर 1. मानते कोई स्फीयर है, स्क्वायर है जिसका चार्ज q है, इसका -2q है, इसका 3q है, इसका 4q है, और सेंटर पर जो a डिस्टेंस पर है,
तो फाइंड द पोटेंशियल एट ओ। तो पोटेंशियल एट ओ इसके कारण कितना होगा, के क्यू बाई ए, इसके कारण माइनस नेगेटिव है तो माइनस के टू क्यू बाई ए, पॉजिटिव है तो प्लस 3 k बाई ए, ये डिस्टेंस पर हो रहा है। इसके कारण कितना होगा, पॉजिटिव है तो 4 k बाई ए। सिंपल, पोटेंशियल निकाल के एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। नेगेटिव है तो नेगेटिव लिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिए। 3 4 4 8 माइनस 2 6 k बाई ए वोल्ट। इस तरह से आंसर हो जाएगा। काफी आसान है। इसका एक और एप्लीकेशन बता देते हैं। एप्लीकेशन 2 point charges q and minus 4q separated by L. Find the positions where potential is 0. Consider the 2 point charge q and minus 4q separated by L. Find the position where potential is 0. तो इस पर बहुत ही ऑब्जेक्टिव, बहुत कंपटीशन में पूछा भी है कि किसी लाइन पर कितना पॉइंट होगा। तो पहला तो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर दोनों का प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 है, देयर इज नो पॉइंट वेयर V इज 0, जहां V 0 हो सकता है। फर्स्ट, सेकंड, Q1 and Q2 must be less than 0. There must be 2 points where V is 0 except infinity को छोड़ करके 2 पॉइंट एटलीस्ट जरूर होगा। मस्ट बी 2 पॉइंट वेयर V is 0। पहला पॉइंट क्या होगा, किधर होगा, 1 बिटवीन द पॉइंट, 1 between the line joining both charges, other outside towards smaller in magnitude. तो लेट इनसाइड पहले चलते हैं, x डिस्टेंस पर है तो ये डिस्टेंस यहां से कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स। फर्स्ट फॉर पॉइंट ए सोन इन द डायग्राम में देखो, डायग्राम में दिखा रहे हैं हम कि ए पॉइंट यहाँ है, एक्स डिस्टेंस पर है, ये माइनस 4 की है। तो इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल का सम 0 होगा, के क्यू बाई एक्स, इसके कारण होगा माइनस के 4q बाई L माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। के क्यू बाई एक्स, के 4q बाई L माइनस एक्स, के क्यू कैंसल, L माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x, L इज इक्वल टू 4x, L इज इक्वल टू 5x, देयरफॉर x इज इक्वल टू L बाई 5। एक पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट और B चलते हैं। स्मॉलर कौन है, Q की माइनस 4q, नेचुरली Q है मैग्नीट्यूड में, तो ये मानते हैं B पॉइंट है जहां x डिस्टेंस पर है। तो B पॉइंट इससे x डिस्टेंस पर है तो यहां पर पोटेंशियल 0 होगा फॉर पॉइंट B। इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई एक्स, इसके कारण कितना होगा, माइनस 4 बाई L प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। के क्यू बाई एक्स, 4 बाई L प्लस एक्स, के क्यू कैंसल, L प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x, L इज इक्वल टू 3x, देयरफॉर x इज इक्वल टू L बाई 3। तो एक L बाई 5 जो बिटवीन देम है, L बाई 5 डिस्टेंस पर हमको मिलेगा पोटेंशियल 5 L माइनस L बाई 5, 5L 4L बाई 5। और दूसरा बाहर की ओर x L बाई 3 इतना डिस्टेंस पर पोटेंशियल 0 होगा। कभी कभी इस पर ग्राफ भी ड्रॉ करने को बोल सकता है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले बता चुके थे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक बेल्ट बनाएंगे, Q और माइनस 4q का एक बेल्ट बनाएंगे, माइनस 4q Q।
एक Ly3 पर है 0, एक Ly5 पर 0 है। तो ये डोमिनेट करेगा Q, इसलिए इसका इंफिनिटी पर तो 0 होगा ही, और कोई पॉइंट आ करके यहाँ पर आते ही 0 हो जाएगा। उसके बाद जब इस पॉइंट पर, उसी पॉइंट चार्ज पर आएगा, तो ये पोटेंशियल 0 हो गया इसी पॉइंट पर आकर के। फिर ये यहाँ तक डोमिनेट क्यू ही कर रहा है, तो इसके कारण पोटेंशियल 0 हो गया इस पॉइंट पर आकर के। लेकिन माइनस, इसके बाद -4 क्यू कर रहा है डोमिनेट, तो इधर की ओर निगेटिव हो गया, तो निगेटिव जैसे पोटेंशियल होगा लाइन के नीचे ग्राफ ड्रॉ होगा। इस पॉइंट पर आते आते इन्फिनिटी हो गया, तो इस तरह से आते आते इन्फिनिटी पर चला जाएगा, और उसके बाद यही डोमिनेट करते रहेगा, निगेटिव ही पोटेंशियल होता रहेगा, इसलिए इसका इस तरह ग्राफ होगा। तो इस तरह से हम V और X के बीच ग्राफ खींच सकते हैं। ये ग्राफ खींचने का तरीका है। टुडे आई विल give you only 2 application. In next lecture, tomorrow, I promise, tomorrow I will give you another lecture on this application of potential. So thank you and bye.